So this exactly shows that Justin Trudeau, for his domestic politics, has been pandering to certain sections who are anti-India India sentiment and have been working against the interests of India. And India has every reason to believe that for some reason the Canadian government continues to support the narrative which works against the interests of our nation. And our nation is capable enough to take decisions based on its security needs and its requirements and the safety of its citizens. Having said that, we should also be aware of the fact that any loose comments coming from us could impact the diaspora, the Indian diaspora in Canada, as well as lakhs of students who are studying there. So we must be careful and measured with our words, but however, we have to ensure that we take every decision possible that safeguards our national interest. Ma'am, Congress and JRR and take into confidence the both leaders of positions in both houses. I would want to say that at this point in time, when we are seeing Canada push hard the way it has, and without any evidence, without backed by any proof to blame Indian authorities, is extremely upsetting. And I think India is well within its rights to take decisions on its own. And also with regards to taking opposition into confidence, I think a lot of it is being played out in the public domain. We are aware of a lot of things. And I'm certain that the Foreign Minister, at a time he deems appropriate, will brief all sections of the Parliament. Ma'am, has criticized the government, Mahayuti government, for failing in restoration of Maratha reservation. See, this is exactly what is happening to Maharashtra. They have been working against the interests of the state of Maharashtra. And Maharashtra has never seen this kind of disunity amongst people. They first try to divide on the basis of religion, Hindu versus Muslims. Then they try to divide as per caste equations. Today, someone speaking from the Mahayuti itself, the Mahajhuti Gathbandhan that has come together only to being in power, as well as loot the state, exposes their agenda and also shows that they have done nothing for the Maratha reservation. They have been fooling a lot of Maharashtrians and their sentiments only to politically benefit themselves. So what he is saying is pretty clear, that even in the Mahajhuti Gathbandhan, the Mahajhuti alliance partners are not in sync with each other. I've been saying it continuously, that there is, as much as they might try and show some unity, they are fighting amongst each other. They do not they did not stand on the same agenda, and the only agenda that they have is to grab power at any cost. Ma'am, SP leader parties should take them into confidence before election regarding the seat. Our senior leadership will take a call on this. We have very experienced senior leaders. We have Sharad Pawar Sahab, we have Uddhav Balasaheb Thackeray ji, and leaders of the Congress party, and they will sit and take a call on this. Any alliance partner who shows an interest, we will try and accommodate them. However, the final decision would be dependent on what our senior leadership thinks. Ma'am, one more question. Have died due to drinking illicit. It is so unfortunate that Mr. Nitish Kumar thinks by banning alcohol, whatever, is a great move. But what it also ends up doing is taking this entire industry into a grey zone. Illicit liquor, liquor which is coming from other states, which is being acquired at a higher cost, are all the challenges that anyone sees as far as the ban is concerned. If you are implementing a ban, if you decide on announce a ban, then implement it in such a manner that it is foolproof. By limiting access and opening the doors to illicit liquor is going to cost heavier lives and cost heavier damage to the state. It is extremely unfortunate. Either implement it totally or revoke this decision is something that, because it's in the better interest of people residing in the state. प्रधानमंत्री उन्होंने कहा है कि उनके पास पहले कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था। उनके इस बयान के बाद काफी हलचल है इंडिया में। आप क्या कहना चाहेंगे? इससे स्पष्ट हो जाता है कि जस्टिन ट्रूडो देख रहे हैं कि उनका चुनाव आने वाला है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को चलते वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस बर्बाद करने को तैयार हैं। और इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, और हमने एक ही बार नहीं बार बार कनाडा को ये बताया है कि इतने वहां पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एंटी इंडिया थॉट प्रोसेस के हैं, प्रो खालिस्तानी सोच के हैं, और खालिस्तानी जो पूरा मूवमेंट था उसमें हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद हो चुकी हैं। आप खुलेआम लोगों को धमकियां दे रहे हैं, हमारे ऑफिशियल्स को धमकियां दे रहे हैं। तो इंडिया इज वेल विद इन इट्स राइट्स टू टेक डिसीजंस विच आर important for our national security.
और यही नहीं, इसके साथ साथ मैं यही कहूंगी कि लाखों हमारे देशवासी वहां पर कार्यरत हैं, वहां पे हमारा डायस्पोरा है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी हमारी तरफ से कोई लूज कमेंट्स नहीं होना चाहिए। पर हाँ, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं, और अगर उनके पास प्रूफ नहीं था, इस लेवल तक उन्होंने ये आवाज उठाई है, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनेगी, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में बार बार आकर इंडिया को अक्यूज कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में आकर स्पष्टीकरण दें। मैम, जो पास में लेना चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कनाडा का जो मुद्दा चल रहा है। आई थिंक कनाडा और इंडिया का जो मुद्दा चल रहा है, काफी कुछ तो पब्लिक डोमेन में है। बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो सेंसेशनलाइज करने की बात है, प्रोबेबली टू पैंडर टू जस्टिन ट्रूडोज कॉन्स्टिट्यूंसीज और उनके इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, बट इट गोज अगेंस्ट अ नेशनल इंटरेस्ट। और जब भी मैं मानती हूं कि रक्षा मंत्री हों या हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हों, जहां उनको लगेगा कि सारे इन्फॉर्मेशन के साथ वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, वो बाकायदा साझा करना भी चाहिए। पर साथ ही साथ जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, हम नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे को कभी भी दरकिनार नहीं करेंगे, वो हमारी प्राथमिकता होगी। मैम, जो अजीत पवार गुट ने कहा कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, महायुति गठबंधन नहीं है, ये महाझूठी गठबंधन है। ये जो सिर्फ झूठ की बुनियाद पे आई है, सिर्फ लूटने को महाराष्ट्र की आई है, सिर्फ आपसी उन्माद जैसे उनको राजनीतिक फायदा हो वो कराने के लिए आई है, और आज ये उनके शब्दों से स्पष्ट हो गया है। आप ये देखिए, उन्हीं के अलायंस में किसी तरीके का तालमेल नहीं है, सिर्फ एक तालमेल है, कैसे मिलकर भ्रष्टाचार करो और सरकार में बने रहो। मैं बार बार कह रही हूं कि महाराष्ट्र में हमने कभी इस तरीके का माहौल नहीं देखा है, जहां पहले आपने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, फिर वहां से आपको राजनीतिक सक्सेस नहीं मिला, तो आपने शुरुआत कर दी ओबीसी समाज बनाम मराठा समाज को। अब आप कर रहे हैं जहां पे धंगर कम्युनिटी और बाकी सारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी हैं, वो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं देश में। तो ये आपने पूरा महाराष्ट्र में ये माहौल बनाया हुआ है, जहरीला माहौल बनाया हुआ है, और वो जहर आपको ही डसने वाला है, ये इनके शब्दों से बहुत ही स्पष्ट होता जा रहा है। मैम, जो मुंबई मशवरा कर रहे सीटों के बंटवारे को लेकर, क्या अगर वो नहीं करते हैं तो मानेंगे कि वो उसका पार्ट नहीं मानते उन्हें? देखिए, जो उन्होंने स्पष्ट बात कही है, वो 3 हमारे सीनियर लीडरशिप है, महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस के अंतर्गत है, और जो भी अगर उनकी मांग भी है, वो अलायंस मेंबर होने के नाते डिस्कस कर सकते हैं, और तीनों सीनियर लीडर्स डिसाइड कर सकते हैं क्या महाविकास अघाड़ी के हित में है, क्या महाराष्ट्र के हित में है। और अगर कोई अपना इंटरेस्ट जाहिर करता है किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम बिल्कुल उस पर उनकी सुनवाई करेंगे, डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन होगा महाराष्ट्र के हित में होगा। मैम, चुनाव लड़नी है जहां उन्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, और वो कहा कि बुजुर्ग हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे एक महिला नेता के बारे में ऐसी टिप्पणी? भद्दी सोच के शिकार हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है महिलाओं के को लेकर, महिला विरोधी जो इनकी संस्कार हैं, वो दर्शाते हैं। उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ एक महिला नेता के बारे में नहीं कहा है, उन्होंने अपनी सोच दर्शाई है कि क्या वो महिलाओं को लेकर सोचते हैं। शर्मनाक है, और अब तक किसी ने अगर उसको किसी तरीके से एक्शन नहीं लिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये स्पष्ट मान लिया जाना चाहिए कि बृजभूषण शरण सिंह से लेकर जो भी कुलदीप सेंगर से लेकर बाकी इनके सारे नेता जो ऐसी हरकतों में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको ऑफिशियली एक्सेप्ट करती है और ऑफिशियली उनकी सोच से मत रखती है। मैम, एक ऐसा करेंगे नहीं, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करना ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं मानती हूँ ठीक ही है कि आपके क्या पदार्थ यूज हो रहे हैं, क्या खाना बन रहा है, पर अगर ये किसी राजनीतिक सोच की जो घटनाएं हो रही हैं तो राजनीतिक सोच के अनुसार कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठाने के अनुसार कर रहे हैं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर बात रखी है अपनी। तो अगर ये राजनीति से जुड़ा हुआ है तो ये उन्माद फैलाने के लिए है, पर अगर सही मायने में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है तो मैं मानती हूँ कि ये जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो खाते हैं, क्या खा रहे हैं, वो एक ट्रांसपेरेंसी लाता है। मैम, अगर बिहार की बात मौत हो गई है, क्या बहन के ऊपर आप कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ है, जो घटना हुई है। मैं मानती हूँ कोई भी बैन लगाने से पहले उस पर सोच विचार करना चाहिए, और बैन लगाते ही कैसा उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन हो,
फुल प्रूफ इम्प्लीमेंटेशन हो तभी उस बैन का फायदा होता है। वरना आप देखेंगे कि दूसरे राज्यों से वहां पे इलीगली लिकर आता है, फिर इलिसिट लिकर बिकता है, फिर मिलावटी लिकर बिकता है। सफर कौन करता है? राज्य ही करता है, राज्य के वासी करते हैं। तो ये तो स्पष्ट होता जा रहा है कि जो आपने निर्णय लिया था उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन करने में विफल रहे हैं, और इतनी लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी आप अगर अपनी आंख बंद करे रहेंगे इस प्रॉब्लम को लेकर, तो मैं मानती हूँ ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपना अफसोस जताना चाहूंगी और उन सब परिवारजनों को अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी, और उम्मीद करूंगी कि हर राज्य सरकार सेंसिटिव होगी इस बात को लेकर कि कुछ भी निर्णय लेने से पहले आप उसका पूरी पुख्ता जानकारी ले लें और पुख्ता तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें।